Hello everyone, welcome back to the another tutorial of our Java programming series. In the last video, we will discuss about like object related, like how to pass array object, how to return the array object. Now in this video, we will discuss about the static keyword. What is a static keyword? Static keyword is one of the important topic in Java programming. If I talk about the interview perspective, then interview asking the question related to static. What is a static block? What is a static method? What is a static keyword? Everything we will cover in this video. So I will open first PDF, then after I will explain you like what's a static keyword in Java. If I talk about firstly Java, every programming it's the same situation using a static keyword. It's a fix. Static means it will be a fix over data. Once you use a static keyword, then you will be not change data in a static keyword. It's only you will be change the data when you also you have a need to the static method static block, then you will be change the data. Without the static keyword, without the static block, you will be not the change the data of the static keyword. So यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं. In Java, the static keyword is used to define a class level or a static member. This means that the member belongs to the class rather than any instance of the class. Static keyword हम class level जितने भी हम variable बनाते हैं उनके साथ हम use ले सकते हैं, मतलब create कर सकते हैं. Without like a local variable हम static variable static use नहीं कर सकते local variable के साथ. Right. This means that the member belongs to that class rather than any instance of the class. Class के अंदर ही होनी चाहिए. Like static keyword is a non-access modifier. Okay. Static keyword used for the class level variable. ये मैंने आपको बता दिया. Static keyword used for method. Method के साथ भी static keyword का हम use करते हैं. Static हम block भी बना सकते हैं और static हम inner class को भी हम static बना सकते हैं. We can say as a nested class. अगर आप क्लास के अंदर क्लास बनाना चाहो उसको आप स्टैटिक बना सकते हो, बट आउटर क्लास को आप स्टैटिक नहीं बना सकते हो. Now there are the survival context in which the static keyword is used. Like first, like a static variable. कैसे हम static variable बना सकते हैं, इसको हम एग्जांपल के थ्रू भी समझते हैं. पहले हम यहाँ पर definition पढ़ लेते हैं. When a variable is declared with the static keyword, it becomes a class variable. Okay, there is only one copy of this variable cannot that is shared among all the instances of that class. Changes made to the variable will affect all the instances of the class. अगर आपने इसके अंदर कोई चेंज किया वो आपको दिख जाएगा क्लास के अंदर. अब इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. Like I will open first notepad here. Like first I need to create a class, public class, like a static example. स्टैटिक एग्जाम्पल के नाम से मैंने क्लास क्रिएट किया. यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे, लाइक स्टैटिक इंट नंबर. ऐसे आप यूज में ले सकते हो. चाहो तो आप ऐसे आप स्टैटिक कीवर्ड या इसको बोलते हैं हम स्टैटिक वेरिएबल. स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेरेशन. ठीक है, डिक्लेरेशन. इसके साथ आप एक्सेस मॉडिफायर का भी यूज कर सकते हो, जैसे कि पब्लिक प्राइवेट, लाइक प्राइवेट इंट id, स्टैटिक id. ठीक है, इंट id. ऐसे भी आप यूज कर सकते हो. एक्सेस मॉडिफायर भी यूज ले सकते हो आप जब आप स्टैटिक वेरिएबल क्लास के अंदर बनाओगे. ऐसे हमने यहाँ पर बना दिया. अब हमें इसको इनिशियलाइज करवाना है. पहले अगर हम नॉर्मल क्लास बनाएंगे, नॉर्मल क्लास के थ्रू भी हम इसको इनिशियलाइज करा सकते हैं स्टैटिक को, बट
यहाँ पर अगर हमने एक, ये तो था स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर होना। मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा इस ट्यूटोरियल में। ये तो था स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करना। अब इसको आपको एग्जीक्यूट करना है, वो कैसे, इसमें मेमोरी एलोकेशन करना है, वो हम स्टैटिक ब्लॉक के थ्रू कर सकते हैं। स्टैटिक ब्लॉक, जैसे हमने ये एक स्टैटिक ब्लॉक बनाया, इसके अंदर हम इसका मेमोरी एलोकेशन कर सकते हैं। एक और वेरिएबल बनाते हैं जिसको हम नॉन स्टैटिक वेरिएबल बना लेते हैं, प्राइवेट इंट प्राइवेट स्ट्रिंग नेम। ओके, अब इसके अंदर हम इसको तो इनिशलाइज करा सकते हैं, वेरिएबल को यहाँ पर स्टैटिक को इनिशलाइज करा सकते हैं, जैसे कि आईडी यहाँ पर मैंने दिया 33, और अब मैं चाहूँ तो नेम, इट्स नॉट पॉसिबल। स्टैटिक ब्लॉक के अंदर आप खाली स्टैटिक कीवर्ड, जितने भी आपके स्टैटिक वेरिएबल हैं उनको आप इनिशलाइज करा सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया नेम के अंदर कुछ भी नाम देते हैं हम, तो यहाँ पर हम नाम देते हैं जॉन। ठीक, ऐसे मैंने यहाँ पर नाम दिया। और अब जब मैं इसको सेव कर लेता हूँ, मैन मेथड बना लेता हूँ, पब्लिक क्लास मैन क्लास मैन मेथड, ऐसे लिखता हूँ। ओके, और यहाँ पर हम पब्लिक स्टैटिक वाइट मैन, यहाँ पर स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट पास कराया, और यहाँ से आप इसको इनिशियलाइज, चाहो तो आप इस जो भी आपने स्टैटिक कीवर्ड यूज़ किया, वेरिएबल क्रिएट किया स्टैटिक कीवर्ड के थ्रू, यहाँ से भी आप डायरेक्टली उसमें इनिशियलाइज करवा सकते हो। आपको यूज़ में लेना होगा क्लास का नेम, जिसे स्टैटिक एग्जाम्पल इसके थ्रू देन डॉट नेम, ये क्या करेगा, ये क्लास एक्सेस करेगा, पूरे जितने भी इसमें वेरिएबल्स है उसको एक्सेस करेगा। तो यहाँ पर भी आप डायरेक्टली इनिशियलाइज करवा सकते हो, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर पहले इसको सेव कर लेता हूँ मैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हम क्लास के अंदर भी करा सकते हैं, मेन क्लास के अंदर स्टैटिक एग्जाम्पल डॉट जावा, static example.java. Okay, now our class will be created now. It's time to execute. इसको हमने execute किया और open किया java c then static example.java। यहाँ पर ये compile हो गया, बट यहाँ पर इसने क्या दिया, नॉन स्टैटिक वेरिएबल नेम cannot be referenced from a static context। ठीक है ना, यहाँ पर आप ये चीज़ें नहीं कर सकते हो। ठीक, यहाँ पर आप ये कंपाइल हो जाएगा, कंपाइल सक्सेसफुली। अब हमें इसको एग्जीक्यूट करना है। अगर मैंने यहाँ पर ही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पर मैंने नंबर को प्रिंट कराया, और यहाँ पर मैंने आईडी को भी प्रिंट कराता हूँ। ये कंपाइल हो गया और हमें इसको एग्जीक्यूट करना है। हमारे क्लास का नाम क्या है, मेन क्लास का स्टैटिक मेथड मेन मेथड मेन मेथड। यहाँ पर ये प्रिंट कुछ नहीं हुआ, कंपाइल हो गया। बट अगर मैं इसको प्रिंट कराना चाहूँ तो मैं यहाँ पर भी डायरेक्टली प्रिंट करा सकता हूँ इस डेटा को, और चाहो तो यहाँ पर स्टैटिक फंक्शन का भी यूज़ कर सकता हूँ। इसको प्रिंट कराने के लिए मैं, अगर मैंने ऐसे किया पब्लिक वाइड शो मेथड बना दिया, अब ये जो चीज़ें मैं चाह रहा हूँ इनको मैं यहाँ पर प्रिंट कराऊँ, क्या ये प्रिंट हो सकती है? यहाँ पर हमने पहले स्टैटिक एग्जाम्पल का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू स्टैटिक
एग्जाम्पल। ठीक, अब मैंने ऑब्जेक्ट के थ्रू इस शो मेथड को कॉल कराया, क्या ये प्रिंट होगा? क्योंकि वो स्टैटिक है, ये बिना स्टैटिक मेथड है। गिव्स अस output or not. It will be compiled successfully. Now time to the run 10 to 33. हमने क्या कर दिया, एक स्टैटिक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर हमने स्टैटिक कीवर्ड के अंदर हमने इसको इनिशियलाइज करवा दिया और स्टैटिक ब्लॉक के अंदर हमने इनिशियलाइज करवा दिया, मेमोरी एलोकेशन कर दिया उसका। मेमोरी एलोकेशन, नॉट अ मेमोरी एलोकेशन, इनिशियलाइज द डेटा। देन पब्लिक स्टैटिक की हमने एक मेथड बनाया, उसको हमने इसके थ्रू प्रिंट कराया आईडी और नेम को। और यहाँ पर हम एक चीज़ और देखते हैं, इस डेटा को हम डायरेक्टली यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट के बिना प्रिंट करा सकते हैं, जैसे कि स्टैटिक एग्जाम्पल डॉट नम, मेमोरी रेगुलेशन किया 40। अब मैं इसको प्रिंट कराना चाहूँ, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एरर, और यहाँ पर मैंने प्रिंट कराया किसको, नम को। ये लो देखो, it will be a gives us error, cannot find symbol num. Now you need to provide here static example dot. Now it gives us output, yes, like 40 40 then 33। ठीक है, हमने यहाँ से स्टैटिक मेंबर को इनिशियलाइज करवाया, फिर जो यहाँ था वो यहाँ से ओवरराइड होकर गया। पहले हमने 10 रखा था, उसके अंदर फिर ये ओवरराइड हो गया। और यहाँ पर अगर मैंने ऐसे आईडी के अंदर भी डेटा दिया, आईडी के अंदर मैंने 50 दिया, अब वो ओवरराइड हो जाएगा। आप ऑब्जेक्ट बनाकर भी डाल सकते हो और डायरेक्टली भी डाल सकते हो। तो क्या बोला, id हैज़ अ प्राइवेट एक्सेस इन स्टैटिक एग्जाम्पल। तो ये तो id हमारे पास प्राइवेट है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका गेट सेटर भी बनाना पड़ेगा। इसका हम तीनों मेंबर का हम गेट सेट बनाते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। इसको यहाँ से भी डायरेक्टली हम कर सकते हैं, पब्लिक वॉइड गेट स्टैटिक वॉइड सेट id। ओके, और यहाँ पर हमने करना है इंट ए, या आईडी दे सकते हो। ओके, नाउ ओके 1 मिनट, ठीक है। और यहाँ पर हम आईडी के अंदर दिस डॉट आईडी के अंदर हमने आईडी डाला, और ऐसे हम पब्लिक वाइड आईडी सेट, यहाँ पर हम आईडी तो किया, सेट नंबर, सेट नम, सेट नम किया, और इसके अंदर एन पास कराया। और देन यहाँ पर आप क्या करोगे, इस नंबर के अंदर ये नंबर पास कराओगे, ये एन पास करा दिया, और ये इसमें चला जाएगा नंबर के अंदर, ये इनिशियल पब्लिक स्ट्रिंग नेम के अंदर है, यहाँ वाइड सेट नेम, और इसके अंदर हमने स्ट्रिंग एन ए, और नेम के अंदर रिक्वेस्ट एन ए। ठीक, ये तो सेट था, अब हमें गेट करना है मेथड को। हम यहाँ पर करेंगे अब गेट पब्लिक वाइड गेट, यहाँ पर वाइड नहीं आएगा, स्टैटिक इंट गेट गेट आईडी, और इसके अंदर हम रिटर्न करवा देते हैं आईडी। और ऐसे आपको आईडी के बाद आपको रिटर्न क्या करवाना है,
नेम नंबर, और यहाँ पर हम नाम, और ऐसे ही यहाँ पर नेम, गेट नेम, और यहाँ पर नेम रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, ये हमने इसका गेट सेट बना दिया। अब हम इसके अंदर एक शो मेथड भी बना लेते हैं जो डेटा को हमें दिखाए। पहले यहाँ पर हम ये देखते हैं आईडी को सेट करना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब सेट आईडी कर लेते हैं, और ये आईडी के अंदर हमने इसको ऐसे किया, ये चला जाएगा उसके अंदर और ये कंपाइल हो जाएगा। Here will be a issue where public static void set id, this id equals to id. Okay, variable this cannot be reference for the static context. Okay, यहाँ पर हम कुछ id के बदले I पास कराते हैं। Then now we have a return name, return. Okay, here string, यहाँ पर नेम रिटर्न हो जाएगा। ये तो चल गया, अब इसमें कोई इशू तो है नहीं। अब इसको हम एग्जीक्यूट कराते हैं, लाइक जावा मैंने तो किया ना वापस मेथड, ये आपके पास 40 40 50 आ गया। ठीक, ओवरराइड होके गया आईडी में। अब जब आप स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ कर रहे हो, स्टैटिक जैसे मैंने यहाँ पर सेट मेथड बनाया, उसके अंदर आप दिस कीवर्ड का यूज़ नहीं कर सकते हो। जैसे मैंने अभी यहाँ पर दिस कीवर्ड का यूज़ किया था, इसने बोला कि आप स्टैटिक मेथड के साथ दिस कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि हमने सेट कर दिया था, बट इसने मना कर दिया यहाँ पर। तो ये भी एक पॉइंट है, आप दिस कीवर्ड यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, नाउ ये तो हमने देख लिया। अब हम एक गेट सेट मेथड शो मेथड बना लेते हैं। पब्लिक, हमने शो मेथड तो बना लिया। हाँ, यहाँ पर अब इन चीज़ों को हम प्रिंट करा सकते हैं। पब्लिक प्रिंट एलन, नाउ हियर आई राइट अ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, गेट आईडी, और ऐसे हम गेट नंबर, और यहाँ पर गेट नेम, ऐसे किया तो तीनों यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे। यहाँ पर नल आया क्योंकि उसके अंदर हमारे पास डेटा तो कुछ है नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं पैरामीटराइज। और एक चीज़ और है कि यहाँ पर ये डेटा प्रिंट हो रहा है, चाहो तो आप डायरेक्टली यहाँ पर प्रिंट करा सकते हो और शो मेथड को भी कॉल करा सकते हो। अभी के लिए मैंने शो मेथड को कॉल नहीं कराना, मैं डायरेक्टली यहाँ से इसको यहीं पर प्रिंट कराता हूँ। यहाँ पर है हमारे पास आईडी, और यहाँ पर हमारे पास है नेम, आप देखना। और कंपेयर, ये तो नेम को देगा क्योंकि ये स्टैटिक तो है नहीं। अब इस नेम को हम कैसे प्रिंट कराएं, हमारे पास नेम क्या है, प्राइवेट है, तो गेट नेम कर लेते हैं हम यहाँ पर। गेट गेट नेम, नेम एज ए प्राइवेट इन स्टैटिक कंटेक्स्ट, और यह भी हमारे पास प्राइवेट है, तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, गेट आईडी। जो डेटा प्राइवेट होगा वो ऐसे प्रिंट नहीं होगा, उसका गेट सेट मेथड हमने बनाया, उसके थ्रू हम उसको प्रिंट करवा सकते हैं। गेट नेम, और यहाँ पर क्या दिक्कत है, नॉन स्टैटिक मेथड गेट नेम कैन नॉट बी अ रेफरेंस फ्रॉम द स्टैटिक कंटेक्स्ट। ठीक है, ये नॉन स्टैटिक है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेके आते हैं, और यहाँ पर हम उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू प्रिंट करा सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, नो।
it will be combined. Now execute 40 50 then null. 40 क्या हमारे पास है नंबर जिसके अंदर हमने यहाँ पर किया सेट किया, देन आईडी को सेट किया क्योंकि ये दोनों प्राइवेट है और यहाँ पर ये प्राइवेट नहीं है, इस वजह से वो डायरेक्टली एक्सेस हो रहा है। बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, डिफॉल्ट ही रहता है, वो कहीं पर भी आप एक्सेस कर सकते हो। अगर मैं इसको भी प्राइवेट करूँ तो यहाँ पर फिर आप सेट करना पड़ेगा, सेट आईडी सेट नंबर, ऐसे भी आप यहाँ पर प्रिंट करा सकते हो। बट नॉन स्टैटिक को आप स्टैटिक कीवर्ड, स्टैटिक क्या है क्लास, स्टैटिक एग्जाम्पल क्या है, ये तो हमारे पास क्लास है, डायरेक्टली ऐसे आप प्रिंट नहीं करा सकते हो। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी जब आप किसी भी नॉन स्टैटिक मेथड को यहाँ पर प्रिंट कराओ। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब इन चीज़ों को मैं यहाँ पर कमेंट आउट कर लेता हूँ कि ये आपको आ गए। अब हमारे पास है, ये तो था स्टैटिक वेरिएबल और ये क्या था यहाँ पर स्टैटिक ब्लॉक। और अब बैक जाते हैं हम हमारी, यहाँ पर आते हैं, ये तो स्टैटिक वेरिएबल था, ऐसे स्टैटिक मेथड था, स्टैटिक ब्लॉक तो हमने देखा। स्टैटिक मेथड, व्हेन अ मेथड इज डिक्लेयर विद द स्टैटिक कीवर्ड it becomes a class method. This means that the method can be called on the class itself rather than on the instance of the class. Static method cannot be accessed non-static instance variable directly. अगर आपने static method बनाया उसके अंदर आप non-static variable को print नहीं करा सकते हो। जैसे कि अभी हमने non-static method बनाया था जिसके अंदर हमने static also नॉन स्टैटिक को प्रिंट कराया, बट अगर आप स्टैटिक मेथड बनाओगे तब जाकर वो पॉसिबल नहीं है। उसमें नॉन स्टैटिक मेथड प्रिंट, नॉन स्टैटिक वेरिएबल या मेथड हो, स्टैटिक नॉन स्टैटिक वेरिएबल हो, उनको आप प्रिंट नहीं करा सकते हो। स्टैटिक ब्लॉक अभी मैंने आपको बताया, स्टैटिक ब्लॉक इज अ ब्लॉक ऑफ कोड enclosed in curly braces and preceded by the static keyword. We declare the static blocks when we want to initialize the static field in our class. Static block gets execute exactly once when the class is loaded. ये एक ही बार execute होता है जब class load हो जाता है, बार बार ये execute नहीं होता है। Static block और execute even before the constructor or executor. Constructor से पहले static block execute हो जाता है। ये तो था static block। अब static method को भी देख लेते हैं। अगर मैंने यहाँ पर एक public static void डेमो मेथड बना दिया, अब इसके अंदर यार शो वन कर देते हैं, शो वन। अब मैं चाह रहा हूँ ये जो डेटा है यहाँ पर भी प्रिंट कराओ, और जैसे कि इन चीज़ों को मैं कमेंट कर लेता हूँ, नहीं इनको नहीं, यहाँ से कॉपी और इसमें डाल लेता हूँ प्रिंट कराने के लिए, और शो वन को नीचे से कॉल कराता हूँ, नॉट शो वन। ठीक, यहाँ से हमने ऐसे, और यहाँ पर गेट नेम, ओके, हाँ एरर आ गई। नॉन स्टैटिक मेथड गेट नेम कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम अ स्टैटिक कंटेक्स्ट। वही दिक्कत है कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ये जो है ना, ये जो नेम है ना वो तो हमारे पास स्टैटिक नहीं है, तो यहाँ पर ये प्रिंट नहीं होगा। स्टैटिक मेथड के अंदर खाली स्टैटिक, जितने भी आपके पास स्टैटिक वेरिएबल हैं उनको ही आप यहाँ पर प्रिंट करा सकते हो। अब कोई एरर नहीं आएगी। अब हमने वहाँ से नेम हटा दिया। हो गेट नेम वेयर इज लाइन नंबर 29, हाँ गेट नम, गेट नाम क्या हमारे पास, गेट नाम तो स्टैटिक है, तो एरर किस चीज़ की है, वापस से चेक कर लेते हैं। गेट नाम, गेट नाम कैन बी रेफरेंस फ्रॉम अ स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ये तो हमारे पास गेट नाम तो हमारे पास स्टैटिक है ना, तो ये तो प्रिंट होना चाहिए था। क्या दिक्कत है देखते हैं इसको भी। और यहाँ पर मैंने एग्जीक्यूट कराया तो 50 आया, बट इसने
गेट स्टैटिक इंट नम को डायरेक्टली प्रिंट नहीं कराया। क्यों नहीं कराया वो मेरे को यहाँ पर दिक्कत दे रहा है। क्यों नहीं कराया नम डायरेक्टली अगर मैं प्रिंट कराऊँ जो भी उसके अंदर स्टैटिक मेथड के अंदर डेटा होगा वो प्रिंट हो गया, वो तो प्रिंट हो रहा है। बट जब हमने इसका ओके इसको भी यहाँ पर फिर स्टैटिक बनाना पड़ेगा, स्टैटिक वाइड। ठीक है अब तो चलेगा, और ऐसे भी होगा। और यहाँ पर आप सेट गेट नम भी कर सकते हो। ये आपके पास गेट नम नॉन स्टैटिक मेथड गेट नम कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम अ स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। अभी नॉन स्टैटिक कहाँ से हो गया, नॉन स्टैटिक line number 29 wire is non okay मिसिंग था ना रिटर्न में, तो इसलिए अभी एग्जीक्यूट हो गया। और यहाँ पर आपके पास 4050 और इस वाले को मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर हमने उसको स्टैटिक नहीं बनाया था रिटर्न के, तभी जाकर वो यहाँ पर प्रिंट हो रहा था। ऑनली प्रिंट अगर आपके अंदर अगर आपके पास स्टैटिक मेथड है तो उसके अंदर आप खाली स्टैटिक मेथड को और स्टैटिक कीवर्ड को ही प्रिंट करा सकते हो। बाकी सब अदरवाइज जैसे हमारे नॉन स्टैटिक मेंबर है, जैसे नॉन स्टैटिक वेरिएबल हमारे पास नेम है, इसको आप यहाँ पर प्रिंट नहीं करा सकते। बट अगर आपके पास नॉन स्टैटिक मेथड है उसके अंदर आप स्टैटिक को भी प्रिंट करा सकते हो और नॉन स्टैटिक को भी प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा हम स्टैटिक मेथड को क्यों यूज में लेते हैं। और स्टैटिक एक बार आपने डिक्लेयर कर दिया, आप इसमें बार बार चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर वापस से एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम तीनों को भी डेटा इनिशलाइज करवा सकते हैं। यहाँ लिख लेता हूँ मैं ये स्टैटिक स्टेट मेथड और स्टैटिक ब्लॉक स्टैटिक वेरिएबल स्टैटिक मेथड। बट अगर आप यहाँ पर ऐसे भी करो स्टैटिक क्लास सी, यहाँ पर बी क्लास मैंने इसके अंदर बनाया, ये भी आप कर सकते हैं, अलाउड है। बट यहाँ पर आप स्टैटिक नहीं लगा सकते। ठीक है ना, आउटर क्लास को आप स्टैटिक नहीं कर सकते, इनर क्लास को आप स्टैटिक कर सकते हो, कोई एरर नहीं देगा। यहाँ पर हमने एग्जीक्यूट किया इसको, कंपाइल, ये कंपाइल सक्सेसफुली हुआ और एग्जीक्यूट, यहाँ पर आपको ये प्रिंट हो जाएगा। अंदर आप क्लास बना सकते हो, इसके अंदर आपको जो बनाना है वो आप बना सकते हो, स्टैटिक वेरिएबल बनाना है, प्रिंट कराना है वो आप करा सकते हो। ऐसे भी ये हम इसको क्या कहते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। और ये तो स्टैटिक ब्लॉक था, ये था स्टैटिक नेस्टेड क्लास। A static nested class is a nested class that is a declare within the static modifier. It can be accessed using the class name without creating an instance of that outer class। ठीक है, ये मैंने आपको दिखाया कैसे आप बना सकते हैं स्टैटिक क्लास को। The static keywords simplify memory management as overuse of the static member can lead to issue related to maintainability and testability in object oriented design। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, हम स्टैटिक कीवर्ड को क्यों यूज करते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट के लिए। अलाउस टू यूज अ मेमोरी मेंबर्स विदाउट क्रिएटिंग इंस्टेंस ऑफ द क्लास। इसको लिखेंगे नेस्टेड क्लास, स्टैटिक नेस्टेड क्लास। दैट इज ऑल अबाउट द स्टैटिक कीवर्ड। आप इसको इसी मेथड के अंदर भी कर सकते हो। हाँ, एक और चीज, अगर हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर के अंदर आप तीनों चीजों को आप डाल सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर स्टैटिक एग्जाम्पल का एक कंस्ट्रक्टर बनाया, डिफॉल्ट और पैरामीटराइज। अभी के लिए हम डिफॉल्ट नहीं बनाते हैं, पैरामीटर्स बनाते हैं। इसमें मैंने नंबर और आईडी और नेम एंड यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, नंबर के अंदर एन कर दिया और आईडी के फर्स्ट आईडी आई दिया, नेम के फर्स्ट एन दिया। ठीक,
ऐसे आप करा सकते हो और यहाँ से आप डेटा भेज सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर भेजा। और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट नया बनाते हैं हम, स्टैटिक एग्जांपल वी ओबीजे फर्स्ट न्यू स्टैटिक, और इसके अंदर मैं डेटा पास कराता हूँ, जैसे कि मेरे पास है नंबर 342, देन आईडी 541, देन नेम, ये मैंने इसका नाम दिया, और यहाँ पर आप ओके। वन मोर थिंग, शो मेथड को भी कॉल कराना पड़ेगा, तभी जाकर पता चलेगा बी ओबीजे डॉट शो। ठीक, ये आपके पास ओके न्यू स्टैटिक एग्जांपल नंबर एंड string n is already defined in constructor static n, तो यहाँ पर हम इसको चेंज कर देते हैं और यहाँ n कर देते हैं। ओके, और यहाँ पर भी कर लेते हैं हम ओके यू। ठीक, अब कोई दिक्कत? अब हमारे पास है न्यू कीवर्ड का ऑब्जेक्ट, क्या है ये? स्टैटिक ओबीजे इक्वल्स न्यू स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, स्टैटिक इज क्लास, स्टैटिक एग्जाम्पल कैन नॉट बी अप्लाइड टू गिवन टाइप। ओके, ठीक है। यहाँ पर हम एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बनाते हैं, स्टैटिक, और यहाँ पर हमने like this, it will be a output like 541 234 and alpha। वो इसलिए यहाँ से चल नहीं रहा था क्योंकि यहाँ पर हमारे ये स्टैटिक ब्लॉक हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया था। यहाँ से जब ऑब्जेक्ट बना था इसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मिला ही नहीं, तो उस वजह से इसने एरर दिया। आई होप आपको समझ आया होगा। आप स्टैटिक वेरिएबल को स्टैटिक वेरिएबल को आप कंस्ट्रक्टर के अंदर भी इनिशियलाइज करवा सकते हो। दैट्स ऑल टुडेज वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।